I request CA Yash Tulsija to please come forward and introduce the learned faculty for the session, Mr. Ravi Deora. Good afternoon all. Welcome sir on behalf of ICI, and Mr. Ravi Deora is the Director and Head of Research in Kumarji Group with 16 years of experience in research, financial planning and fund management. Sir has a diverse background in the domestic and international investments. Mr. Deora is associated with the financial conglomerate Kumarji Group since more than a decade as a Head of Research and Director. He represents Kumarji Group in the media like CNBC, Z, ET, GTPL, DD News and News Capital for sharing insight on the financial market segments. Also, he is associated with almost all regional challenges for sharing the expert view on the economy and financial assets classes. His articles has featured in the national and regional print media like Money Control, Finance Outlook, ANMI, PMS Bazaar, major newspapers and magazines. Additionally, he published 2 monthly magazines of the Kumarji Group, Kaleidoscope and Wealth Compass, with outlook of equities, commodities, mutual fund and macro outlooks. He has successfully conducted over 700 seminars and webinars with regulators, exchanges, various associations across the India on the financial market and macroeconomy. Mr. Deora is also a part of the various committees of the exchange on the product and the policy development as well. Sir holds a management degree and has completed a number of relevant courses in the financial market. With this brief introduction, I welcome Sir for guiding us on the equity, commodity and the financial market. And I'm sure we will gain the much knowledge, and I'm having later on if any personal or financial queries, then he will address. Sir. Oh, sorry for that. With this, I request Mr. Abhinav, who is a management committee member, to welcome with the memento to the sir. So, sir, stage is yours. Thank you. First of all, thanks for inviting me, and I think it's a privilege कि यहाँ पे जो CA है ऐसा बोलते हैं हम and मानते हैं कि each and every CA is a organization itself. तो इतने सारे organization के सामने हमें मौका मिला and आपको कुछ explain करने का, या financial market is a new and interesting thing for all of us, and अभी ये market काफ़ी theme में भी है. काफ़ी टाइम पहले देखे तो इन 2010 जब सबके कैरियर स्टार्ट था, एट द टाइम सिर्फ इंडिया में 1 CR अकाउंट ही थे. 1 करोड़ डीमेट अकाउंट में 14 साल में लगे. 14 इयर्स तक हमने टोटल इंडिया में 1 करोड़ डीमेट अकाउंट्स ओपन किए. उसके बाद 7 ईयर में हमने दूसरे 1 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन किए. पहले 14 ईयर्स आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 3.5 years मीन्स के एग्जैक्ट ये टाइम हमने तीसरे 1 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन किए. एंड आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ये पेस है वो काफ़ी बड़ा हुआ, काफ़ी एग्रेसिव हुआ. एंड 2020 जब सब हम घर में थे, काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी CA, काफ़ी हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, तो किसी को ऐसा हुआ कि स्टॉक मार्केट अकेला एक एवेन्यू था काफ़ी लोगों के लिए जिसके जरिए हम कुछ अर्निंग कर पाए. तो उसके बाद जो टाइम 2 साल में ही हमने अदर रिकॉर्ड किया और नाउ 15 करोड़ डीमेट अकाउंट्स इंडिया में है. 15 करोड़ डीमेट अकाउंट में मैक्सिमम अकाउंट जो है वो आई थिंक अभी भी मेल ओन कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये मेल से फीमेल की ओर जा रहा है. फीमेल का भी पार्टिसिपेशन मार्केट में इतना ही बढ़ रहा है. तो ये मार्केट का पार्टिसिपेशन बढ़ना मीन्स कि एक फैमिली में 2 अकाउंट होते ऐसा माना जाता है, फिर भी 7 करोड़ से 8 करोड़ फैमिली इक्विटी मार्केट के साथ जुड़ी हुई है. तो धीरे धीरे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है, एक इंटरेस्टिंग असेट क्लास बन रहा है. और वेल्थ ये मीन्स कि आपका पूरे प्रैक्टिस का एक पार्ट है कि जो भी आपके क्लाइंट्स है और सबका, हमारा सबका ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मनी, टू प्रोटेक्ट मनी. जिसने बना लिया है वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. तो बेसिकली आज हम वो थोड़ा समझेंगे कि मार्केट का आउटलुक क्या है.
हाउ टू अर्न फ्रॉम इक्विटी मार्केट, उसमें क्या क्या एवेन्यूज़ है, क्या क्या नया ट्रेंड चल रहा है। फॉर एग्जांपल जो मैंने बताया कि अभी एवरी 7 मंथ 1 करोड़ डीमेट अकाउंट्स नए ओपन हो रहे हैं एवरी 7 मंथ। जो पहले 14 ईयर्स में हुआ था वो हम 7 मंथ में कर रहे हैं। अभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया है, और पहले क्या था ऑफलाइन सब ओपन होता था, अब सब ऑनलाइन हो गया। तो इतना जल्दी से लोग का पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो ये पार्टिसिपेशन में हमें जानना इम्पोर्टेंट है कि ये जो स्टॉक्स है, मीन्स कि आप सीए है तो बेसिक में नहीं बात करूँगा क्या इक्विटी मार्केट है, क्या ये फाइनेंशियल असेट्स एवेन्यूज है, तो सीधा ही मीन्स मैं आज जो है हमारा सेशन एक ऐसा नहीं वन साइड है, जो मैं मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं करता हूँ मेरी फंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में वही मैं डिलीवर करूँगा। धीरे धीरे आगे जाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा ये सेशन। मैं क्या देखता हूँ जब कोई स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, मीन्स कि मैं फंड मैनेजर हूँ, मीन्स मेरी कंपनी में मैं हमारे जो भी वेल्थ प्रोडक्ट्स है पोर्टफोलियो से एडवाइजरी पोर्टफोलियो से साथ में क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट है वो मैं मैनेज करता हूँ फंड मैनेजमेंट की ओर से। तो मैं कोई स्टॉक या कोई असेट को सिलेक्ट करने में क्या देखता हूँ, तो मैक्रो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीन्स कि इकोनॉमी क्या कर रही है, कोई कंट्री क्या कर रहा है, वो काफ़ी मैटर करता है। और इंडिया तो ऑलवेज मैटर करता है, क्योंकि इंडिया जैसे बेटर रिटर्न तो वर्ल्ड में किसी ने नहीं दिए। और हमारी जो पॉलिसी की कंसिस्टेंसी ना होने के बावजूद यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है, अभी सेबी का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड है उसका अभी कॉन्ट्रा है कि उसको ऐसा है कि पार्टिसिपेशन कम हो, इतने ज़्यादा लोग विदाउट एजुकेशन मार्केट में ना आए। तो इस हिसाब से डे बाय डे रेगुलेशन चेंज हो रहा है, फिर भी मार्केट बढ़ रहा है। इलेक्शन के अर्निंग्स, इलेक्शन के जो नंबर्स आए उसके बाद, इलेक्शन के नंबर के बाद मीन्स के बजट आया, दोनों इक्विटी मार्केट के लिए खराब थे। जो मार्केट ने सोचा था उससे नेगेटिव आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया, फिर भी मार्केट उसको नेगेटिव नहीं ले रहा है। तो क्या रीज़न है वो भी मैंने स्लाइड्स में लिया है। बट मैक्रो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास पैसा है और कुछ, जैसे सर आगे बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, थोड़ा अर्ली में आ गया था, तो मैं सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि जो नेगेटिव केस पॉजिटिव करे उसको, उसके ऊपर मार्केट का फोकस होता है। तो ये हमारे मार्केट में भी ऐसा ही है कि कोई बोले फॉर एग्जांपल एक XYZ जो बड़े नाम है वो सिक्योरिटी बाय करो, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि आज इंडिया में FD का तो आप देखो, RBI हर रोज कॉन्फ्रेंस करती है, जहाँ भी कॉन्क्लेव में जाते हैं तो RBI गवर्नर बोलते हैं कि डिपॉजिट्स नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है बैंक के पास। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये पैसा इक्विटी मार्केट में दूसरे एसेट क्लास में डाइवर्ट हो चुका है। तो इस हिसाब से मार्केट में पैसे क्यों आ रहे हैं, मीन्स के जब मैंने रिसर्च स्टार्ट किया तब मीन्स के ये कॉन्फ्रेंस में भी आ जाए इतने एनालिस्ट भी इंडिया में नहीं थे। ये कॉन्फ्रेंस भी मीन्स के एक पार्ट आए इतने एनालिस्ट थे इंडिया में। और लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करते थे कि लाइक वो माउथ पब्लिसिटी से, लाइक आज मैंने लिया, मैंने इसको बोला कि अच्छा है ले ले, तो ना तो कोई पूछता था और ले लेते थे। और इस टाइम मार्केट का बेस लो था तो रिटर्न भी बनता था, तो वो बाय फॉर्चुनेट था। अभी मार्केट का बेस हाई हो चुका है, तो अभी धीरे धीरे मार्केट में रिसर्च एंड फंडामेंटल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। तो जो भी फंडामेंटल ड्रिवन, स्टोरी ड्रिवन, न्यूज़ ड्रिवन और ये एक प्रिसाइज वे में जो इन्वेस्टमेंट करेगा, मार्केट में रिटर्न ना मिलना वो सबसे बड़ा फॉर्चुनेट पर्सन है। कोई ऐसा बोले कि मैंने लॉस किया, वो सबसे बड़ा फॉर्चुनेट है, क्योंकि मार्केट खुद 15% के CAGR से चल रहा है एंड ही इज नॉट मेकिंग रिटर्न, मीन्स ही इज एक्सेप्शनल। तो हम ऐसे एक्सेप्शनल पर्सन है, उसको बोलते हैं कि आप थोड़ा स्टडी करो। मीन्स कि जैसे आज मुझे बिजनेस करना है, कुछ प्रैक्टिसेस करनी है, प्रोफेशन करना है, तो मैं कितनी चीज़ें देखता हूँ। फॉर एग्जांपल आज कोई मुझे यहाँ पे एक फूड बिजनेस लगाना है, तो मैं देखूंगा कि ये रोड आगे से तो ब्लॉक है, यहाँ से कोई आएगा नहीं, यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितने लोग रह रहे, इतना मैं मेरा फंड कैसे करूँगा, मेरी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करूँगा। तो ये सारा मैं क्लब करके मैं देखता हूँ कि मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। इक्विटी मार्केट में कोई इतना नहीं देखता। इक्विटी मार्केट में न्यूज़ में देख के, व्यूज लेके के लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और बाद में फंसते हैं। तो सिर्फ थोड़ा रिसर्च, थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूरी है, जिसमें मैक्रो में हम देखते हैं कि GDP ग्रोथ रेट क्या है। मीन्स के एज अ इंडियन फंड मैनेजर हमारे लिए मैक्रो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। FIS जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उसके लिए मैक्रो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके पास ताइवान है, उसके पास कोरिया है, उसके पास इंडिया है, उसके पास चाइना है,
उसके पास मलेशिया इंडोनेशिया है, उसको सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन सी कंट्री में जाना है, और वो कंट्री के कहाँ जाना है उसको सिलेक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, वो अलग अलग कंट्री के फंडामेंटल देखेगा, मैक्रोस देखेगा, और बाद में वो सिलेक्ट करेगा कि फॉर एग्जांपल इंडिया, तो मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है। हम एज ए इंडियन फंड मैनेजर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना है, इंडिया। तो मैक्रोस हमारे लिए जीडीपी 5% हो या जीडीपी 15, हमें तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही करना है। बट मैक्रो चीज क्या दिखाता है, हमारी इकोनॉमी क्या चल रही है, वो क्या दिखाता है कि आपको आगे जाके रिस्क कितना है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहे है, मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, इट्स अ गुड, बट इकोनॉमी इतना ज़्यादा नहीं कर रहे और मार्केट अच्छा चल गया है, इट्स नॉट गुड। तो ये आपको एक रीशफलिंग कब करना है, मीन्स कि आपको इक्विटी में से थोड़ा पार्ट डेट में ले जाना है, गोल्ड में ले जाना है। लाइक आपको ऐसा लगे कि आगे कुछ वॉर होगा तो आपको वो डेट में भी लॉस होगा, तो इससे आपको थोड़ा गोल्ड में ले जाना है। तो ये दिखाता है मैक्रो। माइक्रो, जिसमें आप सब यूनिवर्सिटीज हो, तो माइक्रो मीन्स फंडामेंटल एनालिसिस, आज बैलेंस शीट, पीएनएल, प्रोजेक्शंस, वैल्यूएशंस, ये सब करके हम कंपनी का माइक्रो लर्न करते हैं कि कंपनी कितना माइक्रो में है। अभी माइक्रो में क्या प्रॉब्लम है कि माइक्रो में काफ़ी कंपनीज है, काफ़ी सेक्टर की सेम कंपनीज है जो सेम माइक्रो मीन्स कि 1920 होता है बट वो सेम माइक्रो पे चलती है। तो इसमें सिलेक्शन करना है तो हम वैल्यूएशंस एंड प्रोजेक्शन पे हम माइक्रो करते हैं, जिसमें हम आगे 2 साल का प्रोजेक्शंस करके कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। बट ये विद इन द सेक्टर आपको इंडिकेट करेगा कि कौन सी कंपनी बाई कर दे। आपने मैक्रो से कर लिया कि इंडिया में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, और माइक्रो आपको बताएगा कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो ये दोनों के बिटवीन एक गैप रह गया, वो रह गया कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, वो आपको दिखाएगा मेसो। मेसो एनालिसिस क्या दिखाता है, ये एक बिहेवियरल एनालिसिस है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सेक्टर आगे जाके बूम बूम सेक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल कोरोना में, जब कोरोना आया तो लोग ने अपने पोर्टफोलियो में फार्मा स्टॉक भी बेच दिए, मीन्स कि कोरोना कोरोना करके सब पोर्टफोलियो खाली कर रहे थे। बट पता होना चाहिए कि भाई मीन्स कि अभी कोरोना आएगा तो सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी पे प्रेशर आएगा, सबसे ज़्यादा फार्मा डिमांड होगी। केमिकल में चाइना नंबर 1 है और हम और चाइना ऑलवेज कंपटीशन में होते हैं ग्लोबल बायर्स के पास, तो हम चाइना को कम्पीट अच्छा कर पाएंगे। तो ये सोच के अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया विद इन अ स्पान ऑफ 1.5 ईयर, ये फार्मा स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स 1.5 टाइम्स हो गए, मार्केट से 2 से 3 गुना बढ़ गए। तो ऑलवेज सिलेक्शन ऑफ सेक्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़े सेक्टर आइडेंटिफाई करके मैं भी आया हूँ कि आगे कौन से 5 सेक्टर है जो बूम बूम हो गए, वो मैंने लास्ट में रखा है तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, पहले ही वो बता देते हैं तो इंटरेस्ट कम रहता है। अभी है कि ये पैरामीटर्स, अर्निंग पैरामीटर्स हम देखते हैं कि आज कंपनी की कंसिस्टेंसी कितनी हो। एटलीस्ट प्रीवियस 5 ईयर्स के डेटा अवेलेबल होने चाहिए। इसमें प्रीवियस 10 क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, ये हमारा बेसिक पैरामीटर होता है। कंपनी के वैल्यू पैरामीटर्स हम देखते हैं, कंपनी के असेट, क्योंकि असेट नहीं देखी तो आपको सेफ्टी मीन्स अभी असेट के पैरामीटर का डेफिनेशन अलग हो चुका है, अभी सबको असेट लाइट कंपनीज चाहिए। बट असेट लाइट एंड असेट हैवी वो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई रोड पे हम कार लेके जा रहे हैं, हमारे साथ ही हुआ, हमें पता नहीं था कि आगे रास्ता बंद है, तो हम तो वहाँ तक आ गए और बाद में हमें रिवर्स जाना पड़ा, तो ये लॉस लगा, टाइम का भी लॉस लगा। यहाँ मुझे 3:30 बजे पहुँचना था, वो भी नहीं हो पाया शायद, तो आगे हमें पता ही नहीं था कि आगे रिस्क है। ऐसे ही मार्केट में आगे पता ही ना हो कि रिस्क है तो हम गलत सिलेक्शन कर लेते। अगर हमें पता है कि आगे रिस्क है, वो रिस्क आपको दिखाएगा असेट। मीन्स असेट पैरामीटर में मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ कि कोई भी कंपनी का मार्केट कैपिटल हो, वो उसके रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट से 4 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ कंपनी होल्ड्स रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ 1000 करोड़, तो उसका मार्केट कैप मैक्सिमम 4000 करोड़ होना चाहिए, तो ही मैं वो मेरे पैरामीटर्स में आते हैं। बिजनेस की वायबिलिटीज, ये एक फंडामेंटल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट है कि बिजनेस की वायबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम मास्क वाली, ऑक्सीजन वाली, सिलेंडर वाली सारी कंपनीज चली थी, बट आपको पता है होना चाहिए कि अगर कोविड गया तो उसके बाद जैसे जाइडस को हुआ था, जाइडस ने वैक्सीन बना ली, इंडिया की फर्स्ट कंपनी थी जिसने कोविड की वैक्सीन बनाई, बट उसकी वैक्सीन जब मार्केट में आई तब कोविड चला गया।
तो आपको वायबिलिटी देखनी चाहिए कि कितनी फास्ट कंपनी एग्जीक्यूशन कर पाती है। सेकंड है स्टेक होल्डर्स। अभी एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि जिसको रिटेन करना सब कॉर्पोरेट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। उसमें भी काफ़ी कंपनीज है, लाइक L&T का भी मैंने 2-3 दिन पहले उसके प्रमोटर को सुना था, उसके मैनेजमेंट को, कि L&T का टोटल इंडिया में 60,000 लेबर की कमी है। 60,000 लेबर की कमी सिर्फ एक कंपनी को है। तो लेबर शॉर्टेज इज़ अ बिगर क्राइसिस। किसी को ऑफिस के बाहर काम नहीं करना, सबको ऑफिस में बैठना है, AC चालू रखना है, सबको बैठना है, बट लेबर वर्क नहीं है। सूरत डायमंड एंड टेक्सटाइल बिजनेस क्यों खत्म हुआ? एक तो लेबर शॉर्टेज, डिमांड शॉर्टेज। टेक्सटाइल कंपनीज, मेरी खुद फादर की कंपनी है टेक्सटाइल कंपनी, तो हमने 6 महीने लेबर नहीं थे, इस हिसाब से 6 महीने ऐसे ही कंपनी क्लोज रही। 6 महीने के बाद लेबर आए चालू हुआ, और लेबर हर टाइम धमकाता है, जैसे IT में था कोविड के बाद, तो हर टाइम बोलते हैं कि अब पहले क्या था, ऑनर एंड प्रमोटर का होल्ड था, अभी यूनियन एंड लेबर का होल्ड है। तो वो भी देखना है कि ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के साथ, एंड अदर स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स के साथ अच्छे लाइजनिंग होनी चाहिए। फार्मा कंपनी सब बोल रहे थे कि चाइना से फार्मा का API जो ड्रग में यूज़ होता है, तो वो API इंडिया को, चाइना में इंडिया को नहीं देगा, बट API हमने एयरलिफ्टिंग करके भी हम यहाँ पे लाए, तो चाइना ने हमें प्रोवाइड भी किया, क्योंकि वो रिलेशनशिप मैटर करती थी। और शेयर होल्डिंग मैट्रिक्स, शेयर होल्डिंग मैट्रिक्स में पहले ऐसा था कि कोई शेयर प्रमोटर अगर ज़्यादा होल्ड करता हो तो वो अच्छा स्टॉक माना जाता है, बट बहुत ज़्यादा होल्ड करता है तो भी हमारे मार्केट के लिए वो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? फॉर एग्जांपल 75% सेबी ने दिया है कि 75% तक प्रमोटर ओन कर सकता है। 75% ऊपर है तो उसको एग्जिट करना है, वो गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट को ज़्यादा टाइम मिलता है, प्राइवेट को कम मिलता है। अगर कंपनी होल्ड्स नियर अबाउट टू 75% प्रमोटर, तो MSCI जो मॉर्गन स्टैनली का कंपोजिट इंडेक्स है, उसका एक पैरामीटर है कि जितना फ्री फ्लोट मीन्स कि जितना प्रमोटर का होल्डिंग कम होगा हम उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक लेवल से ज़्यादा भी नहीं, एक लेवल से कम भी नहीं, प्रमोटर का होल्डिंग ऐसे होना चाहिए। हमारे प्रमोटर बहुत स्मार्ट हो गए, किसी को डेट लेना नहीं। ये बैंक सारे क्यों नहीं चल रही, मीन्स जो भी इक्विटी मार्केट देख रहे हैं उसको पता होगा कि बैंक के शेयर चल ही नहीं रहे, मीन्स कि हम सबको ऐसा लग रहा है कि अंडर वैल्यूड है, क्यों नहीं चल रहे। मैंने लास्ट ईयर ही बोला था कि बैंक विल फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस ऑफ डिपॉजिट्स, क्योंकि हम तो खुद मार्केट में पता है पैसा आ रहा है, तो आ कहाँ से रहा है, डिपॉजिट तोड़वा के आ रहा है पैसा। अगर आप FD से ज़्यादा बॉन्ड मार्केट में रिटर्न दे रहे हो, इक्विटी में रिटर्न दे रहे हो, तो पैसा घूम के आता है। अभी तक हमारे पास क्राइसिस, और RBI ने भी एक्सेप्ट किया है कि डिपॉजिट्स नहीं आ रहे। आगे जाके बैंक को वही क्राइसिस होगा कि हमारा सेल्स नहीं हो रहा है, लोन ग्रोथ कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम MSCI के इंडेक्स में जाने वाला है, और MSCI के इंडेक्स में जैसे ही हम इंक्लूड हो गए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि लोग बॉन्ड मार्केट से ही पैसा उठाएंगे प्रमोटर। और प्रमोटर आज क्या करते हैं, इक्विटी डील ज़्यादा ले लेते हैं। प्रमोटर को भी पता है क्यों इक्विटी मिल रही है, मीन्स कि आप IPO मार्केट देखो, IPO मार्केट में जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है मीन्स कि अनबिलीवेबल है। उसमें भी SME में तो बहुत आ रहा है, मीन्स कि आज 40 करोड़ की कंपनी के IPO के लिए आज 40,000 करोड़ आ रहे हैं डिमांड। तो डिमांड इतनी है तो प्रमोटर क्यों ना, कोई देखता ही नहीं, बस सब GMP देख के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसको बोलते हैं, पहले बोलना हमारे लिए अलाउ नहीं था, अब तो मीडिया में भी सब बोल रहे। अभी है कि ये हमने सिलेक्ट तो कर लिया स्टॉक, मुझे कौन सा लेना है, क्यों लेना है, कहाँ लेना है, कहाँ जाना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड कि मेरे पोर्टफोलियो में कॉन्सेंट्रेशन स्टॉक का कैसा होना चाहिए, और वो मुझे रिबैलेंसिंग ऑलवेज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। मार्केट में 3 टाइप के स्टॉक है, एक है प्रोटेक्टर, मार्केट परफॉर्मर एंड आउट परफॉर्मर। मैं एग्जांपल देके ऑलवेज बताता हूँ। ये क्रिकेट की टीम है, मीन्स के ये क्रिकेट की टीम है, इसमें ये तीनों स्टॉक है, 3 टाइप के स्टॉक है। प्रोटेक्टर से मार्केट परफॉर्मर एंड आउट परफॉर्मर। शुरुआत करते हैं मार्केट परफॉर्मर। इट्स लाइक सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं, 100 बॉल में 100 रन्स बनाते हैं। पहले 65 बॉल में 50 मारते हैं, और बाद में 35 बॉल में दूसरे 50, 100 आउट ऑफ 100 उसका स्कोर है। कभी वो 5-10 बॉल या रन ऊपर नीचे होता है, बट वो उसका एवरेज रहा है।
हमारे लिए क्या है HDFC बैंक, रिलायंस जो मार्केट के हैवी वेट स्टॉक है, क्योंकि इंडेक्स इससे ही बना है। अगर इंडेक्स 14% रिटर्न दे रहा है तो वो 14-15 ही देंगे, क्योंकि उसका ही बना हुआ इंडेक्स है, तो वो है मार्केट परफॉर्मर। और वो सचिन को भगवान बोलते हैं, ऐसे ही ये स्टॉक हमारे मार्केट के लिए भगवान है। ऑलमोस्ट ऑल पोर्टफोलियो में ब्लाइंडली कोई भी बोले रात को उठा के कौन से स्टॉक लेने, वो नाम बोल दो, ना तो चढ़ेगा ना तो गिरेगा, आप में कोई ब्लेम नहीं आएगा। तो वो होता है मार्केट परफॉर्मर, हमें हर टाइम वही हम उसको रटते हैं। सेकंड आउट परफॉर्मर, इट्स लाइक वीरेंद्र सहवाग, पहले बॉल से बैट घुमाना वो उसकी प्रकृति है, पिच जैसे भी हो मुझे 6 और 4 लगानी है। तो ये जो आउट परफॉर्मर्स है उसमें भी मार्केट में ऐसे आउट परफॉर्मर्स है मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, जिसका हर टाइम अटेम्प्ट रहता है कि मैं मार्केट से अच्छा करूं, मार्केट से अच्छा चलूं। क्योंकि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट 17,000 करोड़ है, तो वो 34,000 करोड़ में सालों लग जाएगी। बट आज कोई कंपनी जिसका प्रॉफिट 100 CR है वो 400-500 करोड़ तक आराम से पहुंच सकती है। तो ये डिफरेंस है, स्टॉक भी ऐसे ही चलते हैं। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप जहां पर रिस्क क्या है, कोई भी अच्छा बॉल है वो विकेट को निकाल सकता है, विकेट वो जा सकते हैं, बट अगर शॉट लग गया तो 4-6 होगी। इसमें सबसे ज्यादा यूएसपी हमारा है फाइन करने का, इसमें सबसे ज्यादा इनपुट हमें देने पड़ते हैं, क्योंकि हम ऐसा मार्केट परफॉर्मर ढूंढे जो विकेट का रिस्क भी कम ले और रन भी अच्छे बनाए। तो इसमें हमारी यूएसपी होती है, और हम ये ट्राई करते हैं आगे वाले फैक्टर से कि आउट परफॉर्मर ढूंढे। अगर आप ट्रेंड से पहले अंदर एंटर हुए स्टॉक में तो ही आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। न्यूज़ सुन के और बाजू वाले से सुन के आपने लिया तो उसने ऑलरेडी बाई कर लिया, ऐसा कितने लोगों ने कर लिया होगा। काफ़ी लोग मार्केट में जो न्यूज़ में स्टॉक रहते हैं उसका हमें पूछते सर ये बाई करे, सर ये बाई करे, बट ये ऑलरेडी पूरे गांव ने बाई कर लिया, डबल हो गया, अभी क्या बाई करे, अभी रिस्क एंड रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल। तो ये है प्रोटेक्टर्स आर लाइक राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैच कंप्लीट करना, उसका कभी भी ऑब्जेक्टिव रहता नहीं कि रन बनाना। पिच में खड़े हैं तो रन आएंगे, वो 6 भी मार सकता है, मीन्स कि वो 6 मारे तो खुशी इतनी अंदर से होते कि राहुल द्रविड़ ने 6 लगाई। अगर सहवाग 6 लगाए तो इट्स ऑर्डिनरी, बट राहुल द्रविड़ 6 लगाए इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हमारे लिए PSU कंपनीज, ITC ऐसे जो स्टॉक्स है जो प्रोटेक्ट करते हैं जब एडवर्स टाइम आता है। कोविड का इतना बड़ा करेक्शन, मार्केट 45% गिरा, ITC 20 रुपया ही नीचे था, कोल इंडिया 10 रुपया ही नीचे आया था। तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्टर्स है, इसको भी होना चाहिए टीम में। नहीं तो सबको पता है कि वो बॉल ही खाते, मीन्स के 100 बॉल में 50 रन ही बनाते, तो भी टीम में क्यों रखा, क्योंकि जब अर्लियर विकेट्स जाते हैं, आपके मार्केट परफॉर्मर एंड आउट परफॉर्मर अगर नीचे आते हैं, प्रोटेक्टर्स आपकी मैच को कंप्लीट कर रहा है, मीन्स आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको प्रोटेक्ट करने में वो आपकी मदद करेंगे। अब डिसाइड कैसे करना है कि राहुल द्रविड़ को पहले भेजे, सचिन तेंदुलकर को पहले भेजे या सहवाग को, वो आपको तय करना है मार्केट के आउटलुक, जो हमने आगे स्लाइड्स बताई कि मैक्रो क्या कर रहा है। अगर इकोनॉमी में अच्छा, सब अच्छा है, सब अच्छा जा रहा है, तो आप आउट परफॉर्मर का वेट सहवाग को पहले भेजो, बाद में आप सचिन को, बाद में आप द्रविड़। आपको ऐसा है कि अभी मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका है, मार्केट बहुत चल गया है, तो पहले राहुल द्रविड़ को सचिन के साथ भेजो, तो एक प्रोटेक्ट करेगा, एक रन बनाएगा। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो एक प्रोटेक्टर भेजो और एक आउट परफॉर्मर भेजो। तो वैसे आपको तय करना है कि आपके पोर्टफोलियो में इसका शेयर कितना होना चाहिए। तो ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको ज़्यादा सिंपल लगेगी क्योंकि आप ये इंडस्ट्री के साथ, फाइनेंस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अब ऑलवेज जब हम ऐसे करते हैं तो सबका साथ है सर क्या मार्केट का आउटलुक है, और हम इंडिविजुअली सबके आंसर करने पड़ते हैं। तो मैंने प्रेजेंटेशन में ही रखा है कि मार्केट का आउटलुक क्या है। अभी ये टाइम पे 4 क्वेश्चन सबको आते हैं, मीन्स हम सब जगह यही सुनते हैं, ये नॉइस है। पहला है मार्केट इज ओवर वैल्यूड, सबको पता है मार्केट ओवर वैल्यूड है। जिसको मार्केट में कितने स्टॉक है नहीं पता है, बट उसको पता है कि मार्केट इज ओवर वैल्यूड। हम पूछते हैं क्यों ओवर वैल्यूड है, उसका आंसर नहीं होता सर मैंने न्यूज़ में सुना था। तो न्यूज़ में तो आप वो खून करने वाले का भी सुना था, तो आप क्या खून करोगे। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं है। मीन्स जो हम फाइनेंस से, मीन्स मैंने MBA किया है तो मैं आपके साथ फाइनेंस में कुछ नहीं हूँ, बट यस जो CA कम्युनिटी फाइनेंस में करती है, मीन्स आपको कितनी मेहनत लगती है, एक कंपनी की बैलेंस शीट, एक कंपनी की P&L, ये सब, तो इतनी मेहनत वो लोग को करनी ही नहीं। मीन्स आज BSc में सारी इन्फॉर्मेशन, NSC में सारी इन्फॉर्मेशन सब कंपनियों को देनी पड़ती है।
उसका कोई डायरेक्टर का डेथ हुआ तो भी उसको देनी पड़ते है। अच्छा है कि उसका अगर बच्चा हो उसका नहीं मांगते, बट उसका डेथ हुआ वो देनी पड़ते। तो सारे डिस्क्लोजर सर्कुलर्स मार्केट में आते हैं, बट रीड किसने करना है? मार्केट क्या है कि हमें ऑलवेज कुछ ना कुछ बताता रहता है, बट सामने होना चाहिए आदमी। अगर कोई होगा नहीं तो वो वन वे कम्युनिकेशन होगा और हम उसमें नहीं आ पाएंगे। सेकंड, सबको लगता है हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। मुझे पता है 20,000 इंडेक्स जब था तभी लोग बोल रहे थे कि अभी मार्केट, और अच्छे फंड मैनेजर को लग रहा था प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बट मार्केट अभी निफ्टी 25,000 पहुंच गया, फिर भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया। इतना नेगेटिव आउटकम हमारी एक्सपेक्टेशंस, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से हमारे इलेक्शन का आया। मार्केट ने एक दिन नीचे आया, वापिस ऊपर। कैपिटल गेन में इंक्रीज आया, मार्केट ने एक दिन लगाया, वापिस ऊपर। कुछ भी मार्केट को फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट को आपको पता है, सबको पता है। तो उसमें क्या है कि हम ऑलवेज, मैं कहता हूं कि नॉन रिस्क इज नो रिस्क। अगर आपको पता है कि ये रिस्क है तो रिस्क का कोई मतलब नहीं। कल भी फॉर एग्जांपल, कल यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले थे। हम 2 दिन से चिल्ला रहे थे मीडिया में हमारे क्लाइंट्स को कि सर डेटा आने वाला है, ध्यान रखना, सर डेटा आने वाला है, ध्यान रखना। कल जब डेटा आए 5 पॉइंट की मूवमेंट नहीं आई। अब हम मंडे को आंसर देना पड़ेगा कि कोई मूवमेंट ही नहीं थी। तो डेटा ऑलवेज कब काम करता है कब नहीं करता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड, ये वर्ड कहाँ से आया वो भी नहीं पता है। थर्ड इज मार्केट इज आउट परफॉर्म। सब बोलते हैं कि चाइना नहीं चला, हांगकांग नहीं चला, इंडिया चल रहा है। तो यहाँ से पैसा चाइना में जा रहा है। मीन्स मैंने मीडिया में अच्छे मीन्स के एंकर को भी सुना है कि जो ऐसा बोल रहा है कि इंडिया से पैसा निकल रहा है और चाइना में जा रहा है। कोई फैक्ट नहीं है, कहाँ भी नहीं जा रहा है पैसा, पैसा दूसरे असेट क्लास में जा रहा है। तो मीन्स वो भी फैक्ट नहीं है। और फोर्थ के हाई लेवल पे क्या करना है, सर रखूँ, निकल जाओ या नया बाय करूँ। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जब रिटेल क्लाइंट हमें पूछते हैं, उसने फॉर एग्जांपल XYZ सिक्योरिटी 100 रुपये में लिया है, अभी 150 है, तो वो पूछता है कि सर क्या लग रहा है। पहले तो ऐसा नहीं बोलेगा मैंने लिया है, हम बोले सर अच्छा लग रहा है, बोले सर और लूँ, मैंने लिया है। तो हम बोले सर ऑलरेडी है तो नहीं लो। सर आप तो बोल रहे अच्छा है। अगर आपने बोला कि नहीं अच्छा है, बोले सर मैंने तो लिया है, मुझे 50 रुपये मिल रहा है, कहाँ नहीं अच्छा है, तो 50 रुपये तो मुझे दे रहा है। तो वो आपको हर साइड से, हर एंगल से पकड़ लेते। तो हम ऑलवेज, हमारे जो रिसर्च एनालिस्ट कम्युनिटी है उसका जो जॉब है वो थैंकलेस है। अगर हमने एडवाइस की और क्लाइंट ने बाय किया या हमारे एडवाइस से उसने बाय किया और चला, तो वो बोलते बाय फॉर्चुनेट, और मुझे भी लग रहा था कि यह चलेगा। और अगर नहीं चला तो पूरा ब्लेम आता है हमारे पे, तो हम गाली खाने के पैसे लेते। तो बेसिकली ये मार्केट का आउटलुक है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो देख के, रिसर्च करके और अच्छे एंगल से देख के मार्केट में चलना चाहिए। और ये मार्केट ऐसा नहीं है, ये तो क्या है कि मार्केट नॉर्थवर्ड चल रहा है। इंडिया में 9 करोड़ डीमेट अकाउंट ने मंदी नहीं देखी। आउट ऑफ 15 करोड़ डीमेट अकाउंट, 9 करोड़ डीमेट अकाउंट ने कभी मंदी नहीं देखी। सिर्फ एक ही साइकिल देखने वाले लोग 12 करोड़ है, जिसने एक मंदी देखी और एक मार्केट की रिकवरी। 2008-9 जब सबप्राइम क्राइसिस हुए थे पूरा वर्ल्ड, तब हमारे पास 1 करोड़ लोग ही थे जिसने पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था। सेकंड जो हमने कोविड देखा, इट्स नॉट फाइनेंशियल क्राइसिस, इट्स अ हेल्थ क्राइसिस, वो भी कम लोगों ने देखा है। तो मार्केट में सबको ऐसा ही है। और आज मैं एक NSA के इवेंट में था, वहाँ पे तो मीन्स के इतने यंगस्टर थे और हमने क्वेश्चन पूछा कि कितने लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप नहीं मानोगे 60% स्टूडेंट थे, और उसमें स्टूडेंट के ही ज़्यादा हाथ रेज हुए, हैंड रेज हुए कि सब हम भी कर रहे। सेम सिचुएशन 2014-15 में चाइना में हुई थी। चाइना में इतने यंगस्टर्स मार्केट में आ गए 2014-15 में, वहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एज लिमिट लगाया, मार्केट लिमिट जैसे हमारे यहाँ चल रहा है, डेरिवेटिव पे बंद लगा दिया, FIs को बोल दिया कि आप निकल नहीं सकते, नया एंटर कर नहीं सकते। तब भी चाइना का इंडेक्स 2900 था, आज भी चाइना का इंडेक्स 2900 ही है। तो और रेगुलेशन का रिस्क मार्केट में है, बट यस ये मार्केट का बिहेवियर है। जब मार्केट चलता है, मीन्स आज 25,000 निफ्टी है, तब ऑलवेज टॉप लेवल पे इन्वेस्टर का बिहेवियर क्या होता है, ये गेम जैसा होता है, वो है म्यूजिकल चेयर। म्यूजिक बजता है, सबको चेयर चाहिए, सबको पता है कि ऑप्शन है नहीं है, अच्छी है बुरी है, बट सबको चेयर पर बैठना है, मीन्स सबको इन्वेस्ट करना है जब तेजी होती है। सिमिलर वे में जब मार्केट बॉटम पे होता है, तब इन्वेस्टर का बिहेवियर होता है पासिंग द बक्स, मीन्स कि हर को निकाल देना है, चल तू ले जा मैं निकल जाऊँ, तू ले जा मैं निकल जाऊँ, तो पासिंग द पिलो,
सबको अपना पी लो, दूसरे को दे देना है। हालांकि होना चाहिए उल्टा, बट हमारे मार्केट में हो रहा है उल्टा। इस हिसाब से सेबी भी बोल रहे हैं कि 90% ऑफ डेरिवेटिव मार्केट पार्टिसिपेंट लॉस कर रहे हैं मार्केट में, सिर्फ 10% ही कमा रहा है। तो 10% कौन लोग हैं जो अपना फियर एंड ग्रीड दोनों को मैनेज कर पाते हैं। और अगर आप फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, आपको सिर्फ आपकी इमोशन को कंट्रोल करना है मार्केट में, आपको रिटर्न बनेगा ही। अभी सबको लग रहा है कि इंडिया आउट परफॉर्म અને इंडिया इज ओनली परफॉर्म मार्केट। तो मैंने एग्जांपल लिया है, एक है इकोनॉमिक कार, एक है लग्जरी कार। अगर फॉर एग्जांपल आप बोलो कि मुझे इकोनॉमिक कार लग्जरी कार के प्राइस में चाहिए तो भी नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे बोलो कि मुझे लग्जरी कार इकोनॉमिक कार के पैसे पे चाहिए तो आपको धक्के मार के निकाल दे। तो इंडिया इज ए लग्जरी कार। ये क्यों लग्जरी कार है, मैंने स्लाइड भी रखी है। तो लग्जरी कार में बैठने का और उसको ऑनरशिप लेने का पैसा ज़्यादा ही देना पड़ेगा। आप मीन्स के XYZ ब्रांड को ABC ब्रांड के प्राइस पे नहीं ले सकते, कभी भी वो पॉसिबल ही नहीं है, कंपनी आपको भगा देगी। तो इंडिया, हम ये जब फिजिकल चीज़ें देखते हैं तो इसका रिस्पेक्ट होता है, मार्केट में ये रिस्पेक्ट नहीं है। ये ग्लोबल मार्केट का परफॉर्मेंस है और इंडिया का परफॉर्मेंस है। निफ्टी एक साल में 31% चला है, जहाँ पे दूसरे सारे मार्केट में हमारे साथ ताइवान एक ही चला है 33%, और वो भी अभी रिस्क पे आ चुका है। जैसे US इलेक्शन खत्म होगा, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, ताइवान हांगकांग की तरह ही हो सकता है। तो आई थिंक इस हिसाब से वहाँ रिस्क है। जो 20 देख रहे हैं आप, तुर्की की करेंसी के डिवेल्यूएशन का इम्पैक्ट है। अगर करेंसी का इम्पैक्ट इसके साथ मिला दो तुर्की में तो वो नेगेटिव रिटर्न है। तो अकेला इंडिया ही है जिसमें चला है, YTD बेसिस पे देखो या 1 ईयर बेसिस पे। तो ये स्लाइड है जो आपकी फर्स्ट स्लाइड को प्रूव करेगा क्यों हम लग्जरी कार है। ये CAGR रिटर्न है, आप देखो 15 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल। इंडिया ने 20 साल में 13.5% के CAGR रिटर्न हमारा निफ्टी इंडेक्स ने दिया है। 16% का रिटर्न हमारे स्मॉल कैप में दिया है, निफ्टी 500 ने 14% CAGR रिटर्न दिया। कहाँ भी कोई भी इंडेक्स हमारे आसपास भी नहीं है। चाइना तो देखो वहाँ पे, चाइना ताइवान 2-3% के CAGR। अभी हमारा इंटरेस्ट रेट्स, हमें अगर FD में भी पैसे डाले तो 7% इंटरेस्ट मिलता है। तो वो 7% के कंपैरिजन इंडिया के अलावा जो भी मार्केट्स है वो देखो, कोई भी सब्सटेंशियली ऊपर नहीं है। तो ये लग्जरी है, इसका पैसा थोड़ा वैल्यूएशन पे देना पड़े। सेकंड, हम P देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। हमारे यहाँ अगर P 20 के ऊपर जाता है लोग को एक्सपेंसिव लगता है। US में 100 से तो शुरुआत होती, तब वो मार्केट जाके इतना बड़ा हुआ है। उसका बेसिक रीजन है ये एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट इन वर्ल्ड की टॉप 7 कंपनी से इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। सबसे बड़ा मार्केट कैप जिसका है वो है एप्पल, 3.41 ट्रिलियन। हमारी इकोनॉमी से बड़ा, हमारा इक्विटी मार्केट के से छोटा इसका मार्केट कैप है। मीन्स कि टोटल इंडिया की इकोनॉमी एक साइड है, एप्पल कंपनी एक साइड है। एप्पल का सबसे बड़ा मार्केट कौन है आज? इंडिया। क्यों? अगर एप्पल इंडिया में एंट्री नहीं करती, एप्पल अगर फॉक्सकॉन के साथ अपना प्लांट नहीं लगाती, इंडियन गवर्नमेंट उसको अंदर आने नहीं देते, इतना एग्रेसिव होने नहीं देते। वो इंडिया में आई 5 साल पहले, हम यहाँ बैठे, कितने के पास एप्पल था और आज कितने के पास है, कितना बड़ा डिफरेंस है। मीन्स उसका मार्केट शेयर इतना बड़ा कि उसने इंडिया में से सब ब्रांड को अपने घर पे भेज दिया। तो ये एप्पल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, हमारे इकोनॉमी से बड़ी कंपनी है, उसका सबसे बड़ा फोकस मार्केट इंडिया है। सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट का भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, डिस्पाइट कि उसका बेस है US। थर्ड, एनवीडिया, अभी तक वो इंडिया में नहीं आया था, अभी हमारी सारी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ एनवीडिया ने पार्टनरशिप कर ली है, तो उसका भी नेक्स्ट फोकस। गूगल, मीन्स इंडिया में कुछ भी माइंड में आता है गूगल में सर्च कर लेते हैं हम, क्योंकि गूगल ने ही हमारा सब थिंकिंग थोड़ा नैरो कर दिया है। हम कुछ भी होता है गूगल में सर्च कर लेते हैं। गूगल का भी सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इज इंडिया। अमेजोन यहाँ ही फोकस्ड है। सऊदी अरामको का ऑयल का सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडियन कंपनी है। और मेटा, हमारे सिवाय को अभी यूज़ नहीं करता, अभी भी हम मेटा पे, फेसबुक का पेरेंट कंपनीज मेटा। तो टॉप 7 कंपनीज
जिसका कंबाइंड मार्केट कैप अगर ट्रिलियन में देखो तो करीबन 20 ट्रिलियन, इट्स इक्विवेलेंट टू चाइनीज इकोनॉमी। उसका सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट तो इंडिया है, तो इंडिया कहाँ से ओवर वैल्यूड है? और हमारे यहाँ पूरी इकोनॉमी बेच दो पूरे इंडिया को, तब हमें एप्पल जितने पैसे भी नहीं आते। तो कहाँ से बड़ा मार्केट, बड़ा इकोनॉमी हो चुका है, कहाँ से हम ओवर वैल्यूड है? हम सिर्फ खाना खाएंगे और घूमेंगे तो भी इंडियन इकोनॉमी आज से 2030 तक हम 7 to 8 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। यह है कि मार्केट सबसे ज़्यादा, ये हमें जो बोलते हैं कि इंडिया ओवर वैल्यूड है, उसको अपने देश में देखना चाहिए कि जब उसकी इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हुई, ट्रांजिशन हुआ, तब उसके मार्केट कितने चले थे? पहले है यूएसए की इकोनॉमी जब 2 से 7 हुई, उसका इंडेक्स 17 टाइम्स चला था 11 साल में। सेकंड है चाइना, उसका इंडेक्स 5 टाइम्स चला था। थर्ड है जापान, उसका इंडेक्स 19 टाइम्स चला था। तो अगर उसकी इकोनॉमी ट्रांजिशन में होती है, उसके मार्केट्स इतने जा सकते हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी यही फेस पे है, तो हम ओवर वैल्यूड कभी नहीं हो सकते। यह है फंड फ्लो, पैसा कहाँ से आ रहा है? ये FIDIs एक्टिविटी से 1 साल की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का फ्लो क्या है? DIs ने इंडियन मार्केट में 3.6 लाख करोड़ रुपया इंडिया में इन्वेस्ट किया, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर 3.6 लाख करोड़, और उसके सामने FI ने 2 ट्रिलियन भी मीन्स के 2 लाख करोड़ भी नहीं बेचा। तो पहले जो FIs का होल्ड था, पहले FIs के ऊपर हमने टैक्सेशन में चेंज किया, या हमने जब P नोट्स बंद किया, हमारे मार्केट को लोअर सर्किट पे ला के रख दिया था। अभी P नोट्स को दूसरी बार हमने उसमें रेगुलेशन टाइट किए, हमारा मार्केट उस दिन पॉजिटिव में बंद हुआ था। तो अभी FIs का जो फ्लो है उसका धीरे धीरे नीचे आ रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का फ्लो बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से उसका वेट बढ़ रहा है। ये हमारी म्यूचुअल फंड एवरी मंथ SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में सिर्फ इक्विटी मार्केट में 23,000 करोड़ रुपीस एवरी मंथ सिर्फ SIP क्या रहे, लमसम अलग, इंश्योरेंस अलग, मीन्स के फंड मैनेजर्स अलग जो PMS से आता है, 2.9 लाख करोड़ रुपीस हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इक्विटी का फ्लो है लास्ट ईयर का। डिस्पाइट कि काफ़ी फंडामेंटल में चेंज हुआ है, हमारे इन्वेस्टर इतने स्मार्ट है, जो महीने हमारा मार्केट नेगेटिव में होता है वही महीने सबसे ज़्यादा SIP का फ्लो आता है। मीन्स कि जो लोग बोल रहे थे कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन के होल्ड में मार्केट है, वो पूरा आत्मनिर्भर मार्केट हो चुका है। ये हमारा मैक्रो परफॉर्मेंस है, इसमें हम खुश हो रहे हैं कि इंडिया इज द इन अ लिस्ट ऑफ टॉप 5 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स कि हम 5वें स्थान पे पहुंच गए, और हमने इलेक्शन पे भी काफ़ी यूज़ किया, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हम टॉप 5 में हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। बट इन टर्म्स ऑफ अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें एवरी सिटीजन, क्योंकि हम 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, इट्स अराउंड $2600 पर एनम, सिर्फ इंडिया की इनकम यहाँ पे है। तो ये क्यों ग्रो नहीं हो सकती? हमने 10 साल में देखा है एक इनकम ग्रो हो रही है, अभी तो ऑफिशियली भी हो रहे, जब से GST डिमोनेटाइजेशन आया तब से ऑफिशियल इनकम भी शो हो रही है, नहीं तो ये नहीं आ रहे। अभी हमारा 60% 50 to 60% एग्री इकोनॉमी के साथ हमारा लिंक है, इसमें भी हमारी ज़्यादातर लेबर जो है वो एग्री बेस्ड लेबर है, एग्री इकोनॉमी से लेबर आते हैं, उसकी कोई भी इनकम यहाँ पे काउंट नहीं होती, फिर भी हमारा 26 है। सबसे ज़्यादा है गोल्ड हमें सबसे ज़्यादा सेफ बना के रखा है ग्लोबल इकोनॉमी में। हमारे पास जो चीज़ है अभी, वो चीज़ आगे जाके वर्ल्ड में नेक्स्ट हीरो बनेगी, वो है गोल्ड। क्यों? क्योंकि अभी सबको डी-डॉलराइजेशन में जाना है, सबको डॉलर नहीं चाहिए, किसी एक करेंसी पे डिपेंडेंस नहीं चाहिए, तो हम सब काफ़ी रिजर्व जो जिस कंट्री की गोल्ड रिजर्व है, वो लोग अपनी बैंक से ही गोल्ड रिजर्व को एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस हिसाब से गोल्ड भी एक असेट क्लास है। हमारे यहाँ पे 2007 में गवर्नमेंट ने एक जियोलॉजिकल सर्वे किया था कि आप पता तो करो कि इंडिया में कितना गोल्ड है, तो टॉप 7 स्टेट में ये सर्वे हुआ। ये सर्वे गवर्नमेंट को बिटवीन में ना बोलना पड़ा कि आप ये सर्वे को बंद करो। क्यों बंद करो? उसमें अमाउंट आई थी 21,000 टन्स, 21,000 टन्स, ये 7 स्टेट में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक फेडरल रिजर्व, US का सेंट्रल बैंक है, उसके पास 9,000 टन गोल्ड है। इसके सामने हमारे सिर्फ 7 स्टेट में 21,000 टन का फिगर आया, गवर्नमेंट ने वो सर्वे बंद किया।
उसके बाद एवरेज इंडिया में 900 से 1000 टन एवरी साल आया है गोल्ड। तो हमारे पास गोल्ड बहुत है, इकोनॉमी हम तो सब वेल्दी है, बट ऑन रिकॉर्ड हम कम है। ऑन रिकॉर्ड अगर देखें तो वो 2600 ही है, हालांकि ये अमाउंट काफ़ी बड़ी है। तो यूएसए 80,000 पे है, तो हम यूएसए जितने ओवर वैल्यूड तो नहीं है, मीन्स कि यूएसए में ऑलरेडी है। और ये उल्टा है, जितनी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है आपके इकोनॉमी को उतना ही हर्ट होता है। क्यों? अभी हम सुन रहे हैं चाइना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्या फेस कर रहा है? डिमांड ही नहीं है। क्यों नहीं है? एवरेज चाइनीज फैमिली हैज 3 कार। चाइना की एक फैमिली के पास 2 से 3 कार है। चाइना की एक फैमिली के पास 2 प्रॉपर्टी है। चाइना में रेंटल यील्ड है 1.5% सालाना। अगर वो बैंक में देते हैं तो 5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है चाइना में, तो वो क्यों 1.5% पे पैसा लगाएगा? प्राइस एप्रिसिएशन कुछ नहीं है रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट में पैसा नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट ने गोल्ड पे अपना होल्ड रखा कि गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। वो खुद तय करते हैं कि कितना गोल्ड चाइना में आना चाहिए, कितना पब्लिक बाय करना चाहिए। अगर उसको लगता है तो वो होल्ड कर देते हैं, तो वो भी एसेट क्लास नहीं है। इक्विटी में रिटर्न नहीं मिल रहा है। चाइना का 2007 में चाइना का शंघाई इंडेक्स 2700 था, आज 2900 है। तब उसकी इकोनॉमी थी 4.55 के करीब पहुंचने वाली थी। आज चाइना की इकोनॉमी अगर ट्रिलियंस में देखें आप तो इट्स अराउंड $18 ट्रिलियन। इकोनॉमी 4 टाइम से ज़्यादा हुई, उसका इक्विटी मार्केट वहाँ ही, तो क्यों इसमें इन्वेस्ट करे? तो इस हिसाब से चाइना में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि सबका पेट भर चुका है। हाँ वही यील्ड, रिटर्न ही नहीं है। अगर मीन्स के चाइना में रेगुलेशन है, सेल्फ रेगुलेशन है। चाइना में जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सबसे बड़ा रीजन है। आज आप कौन से फ्लैट बाय करोगे वो भी गवर्नमेंट तय करेगी। आप क्या गोल्ड बाय करोगे, क्या करोगे वो भी गवर्नमेंट तय करेगी। आपके मार्केट में एफआईएस को कब आना है वो भी गवर्नमेंट तय करेगी। जब कोविड आया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एफआई को कैनॉट सेल देयर पोर्टफोलियोज, इवन दे कैन नॉट सेल डेरिवेटिव्स, तो वो भी बंद हो गया। तो बाहर से पैसा जब आपके पास ना हो तो आपको लोन तो लेना पड़े। लाइक कि अगर चाइना को ग्रो होना था तो उसको लोन लेना पड़े। आज चाइना के पास $4 ट्रिलियन कैश है, जो हम 650 बिलियन हमारे पास जो है रिजर्व, उसके पास $4 ट्रिलियन है। वो कितना पैसा इन्फ्यूज कर रहा है, वो पॉलिसी लिबरल कर रहे हैं, पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं। बट अगर हमारे बाजू में कोई रहता है, मैं आपका आंसर करता हूँ, हमारे बाजू में कोई रहता है, हमारे रिलेशनशिप इतनी खराब हो गई, उसने घर पे बहुत बड़े पकवान बनाए और आपको इनवाइट किया, चलो मेरे घर आओ खाना खाने, आप क्या करोगे? नहीं जाओगे, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप खराब है, हम तो आगे झगड़ा करके बैठे। तो ये लोग का अभी उसको समझ में आ गया कि गलती हो गई। सेकंड उसका बेसिक रीजन है, 1970 में उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी डाली थी कि आपको एक ही चाइल्ड, वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको कितने चाइल्ड होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 1 फैमिली 1 चाइल्ड, अगर 1 चाइल्ड से ज्यादा है तो आर्मी में जाना पड़ेगा। तो 1 चाइल्ड ये लोग ने किया, तो इससे क्या हुआ, जो एजेड पॉपुलेशन है, चाइना की एज देखो आप, इट्स 45-46 ईयर एवरेज चाइनीज की एज है। हमारे अभी 29 साल है, हमारे यहाँ पे कोई बैन नहीं है। तो बेसिकली इससे क्या हुआ कि लेबर फोर्स, जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, उसको समझना चाहिए कि अगर 1 चाइल्ड करेंगे और वो 1 चाइल्ड अगर यहाँ से बाहर निकल गया चाइना से, तो यहाँ काम कौन करेगा? तो लेबर इज नॉट देयर। वो बाहर मीडिया में वो न्यूज़ देते ही नहीं, क्योंकि वो खुद मीडिया को भी कंट्रोल करते। तो ऐसे इकोनॉमी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्लस सबके साथ रिलेशन खराब, जिसको बाउंड्री बढ़ानी उसका मार्केट और इसकी इकोनॉमी में नहीं बढ़ सकती। इट्स हिटलर शाही इकोनॉमी है। हिटलर की अगर नहीं होता तो जर्मनी आज वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी होता, बट उन्होंने एग्रेसिव हो गए कि चलो अभी बाउंड्रीज बढ़ाते। हांगकांग को अपने में ले लिया, काफ़ी कंट्रीज को इसने अपने में ले लिया, अभी ताइवान को भी सोच रहा है। तो आई थिंक ऐसा वर्ल्ड में खराब इमेज करके उसकी रेटिंग डाउनग्रेड हो रही है। और एफआईएस क्या है, एफआईएस जब इन्वेस्ट करते हैं ना, उसकी एक रूल बुक होती है। वो रूल बुक में उसने लिखा है कि ये पैरामीटर है तो ही मैं जाऊँगा। अगर ये पैरामीटर में एक भी पैरामीटर एफआईएस वायोलेट करेगा तो उसको उसकी कोर्ट चैलेंज करेगी। और एसईसी जो हमारे यहाँ सेबी है, वहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उसके रूल्स इतने टाइट है कि आपको कोई लड़ना भी नहीं है। अगर एसईसी ने फाइन किया कि आप गिल्टी हो तो आपकी कंपनी बंद, बस उसका एक ही रूल है।
आपकी कंपनी बंद, आपके ब्रोकर की कंपनी बंद। तो ना तो कोई ब्रोकर कुछ करने देता है, ना तो कंपनी को इतना है कि मैं कुछ करूं। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से चाइना ये रेगुलेटरी प्रेशर ज़्यादा फेस कर रहा है। यह है यूएस का इलेक्शन एंड यूएस का इकोनॉमिक डेटा। यूएस के इकोनॉमी में इन्फ्लेशन सिग्निफिकेंट नीचे आ रहा है, धीरे धीरे इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। अभी नेक्स्ट सितंबर मिड में 18 सितंबर में पॉलिसी है, चाइना यूएस पहला रेट कट करेगा, इंटरेस्ट रेट कट आएगा, और उसके बाद रिजर्व बैंक भी और सारे बड़े सेंट्रल बैंक ऑलरेडी ECB मीन्स यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये दोनों ने अपने रेट कट की साइकिल चालू की है। और ये रेट कट वो लोग को क्यों करने पड़े, क्योंकि इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई। और अभी इंडिया में भी ये फेज आएगा। तो इंडिया में ऐसे भी हमारे गवर्नर को अवार्ड भी मिला है, AA+ रेटिंग भी मिला है। तो आई थिंक वो क्यों मिला है, क्योंकि हम हमारी इकोनॉमी पे ही चल रहे हैं, हम ग्लोबल नहीं देखते, हम हमारा क्या है वो देखते हैं ज़्यादा। और हमारे रुपी इतना प्रोटेक्टेड है वर्सेस हमारे इमर्जिंग बास्केट, तो उसका भी श्रेय RBI को ही जाता है। अगर RBI ट्राई नहीं करता तो अभी रुपी 87-88 हो जाता कोरोना के बाद। तो बेसिकली ये सबसे बड़ा है। और यूएस का इन्फ्लेशन एक लेवल से नीचे भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने जब उसका लास्ट इलेक्शन था 4 ईयर बिफोर, तो जब ये आया तो ट्रम्प गवर्नमेंट ने, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने $8 ट्रिलियन का प्रिंट कर लिया नोट्स और डाल दिया कि चलो यूज़ करो, इकोनॉमी बर्बाद ना हो, क्योंकि मुझे इलेक्शन में वापस आना है। तो वो भी नहीं आया और पूरा ये 4 साल तक इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम फेस किया। जिस दिन ये अनाउंस हुआ 8 ट्रिलियन का, उसी दिन मैंने सारे मीडिया में, अभी भी रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, उसमें मैंने उसी दिन बोला था कि ये सबसे गलत स्टेप है, क्योंकि ये आगे जाके इन्फ्लेशन को बूस्ट करेगा और रेट रिवर्सल होगा। रेट तब फॉलिंग था, बाद में उन्होंने राइज किया। तो आई थिंक ये हर्डल अभी भी, और अभी दूसरा इलेक्शन आ गया, अभी भी इतना मनी पंप हो रहा है। जैसे ही यूएस का इलेक्शन खत्म होगा वापस इन्फ्लेशन मूव अप करेगा। तो आई थिंक ये एक इंटरेस्ट रिस्क है उसके लिए, बट ये एक परफॉर्मेंस है। जब साइकिल चेंज होती है, रिसेशन से नो रिसेशन मीन्स के इंटरेस्ट रेट कट से इंटरेस्ट रेट राइज, उससे रिवर्स, ऑलवेज जब पहला रेट कट आया यूएस में, उसके बाद यूएस का मार्केट एवरेज 14% चला है, अभी तक का उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। ये इलेक्शन का है सेकंड फेज। अगर हम S&P 500 की मूवमेंट देखें, ये मैंने 2004 से अभी तक इलेक्शन का लिया है, 5 साल मीन्स कि ट्रम्प, सबको ऐसा था कि ट्रम्प फिर से वहाँ पे राष्ट्रपति बने, अगर नहीं बने तो मार्केट क्रैश हो जाएगा। ये डेटा इसका एविडेंस नहीं देते। इस डेटा के हिसाब से 15% चला था S&P यूएस इलेक्शन के बाद। तो एवरी यूएस इलेक्शन के बाद देखो आप, उसकी इकोनॉमी एंड मार्केट दोनों चलता है, क्योंकि लिक्विडिटी का सबसे बड़ा खेल होता है। आपको एक डेटा भी है, यूएस हर 10 साल में जो कमाता है वो 1 साल इलेक्शन में खत्म कर देता है। मीन्स कि उसके अगर 10% GDP है तो 1% गोज टू इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड वहाँ पे फंडिंग। अगर 1% जाता है, उसको 2.5 इलेक्शन आते हैं, एवरी 4 ईयर्स उसको इलेक्शन है। मीन्स कि उसकी 2 साल 2.5 साल की कमाई तो इलेक्शन में जाते 10 में से। तो इस हिसाब से एक है हमारा आउटलुक, इंडिया क्या कर सकता है। हम ग्लोबल काफ़ी देख लिया कि यूएस में रिस्क नहीं है 6 महीने तक। ये 4 चीज़ें हमें देखनी है आगे 2 क्वार्टर में। पहला है अर्निंग्स इंडिया सुपरली आउट परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेशनल एक्सेलेंस इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सेकंड, हमारे यहाँ पर लिक्विडिटी का फ्लो अच्छा है। लास्ट ईयर में टोटल इंडिया में IPO आए 98 IPOs आए इंडिया में। कितने? 98। आउट ऑफ 98 IPOs 81 IPOs पॉजिटिव लिस्ट हुए, पॉजिटिव गेन के साथ लिस्ट हुए। सबसे वर्स्ट IPO सिर्फ 18% माइनस था, सिर्फ सबसे अच्छा IPO 181% प्लस था। मीन्स अगर आपने सब IPO लगे तो आपका एवरेज रिटर्न IPO के दिन, आपने जिस दिन IPO लिस्ट हो उस दिन निकाल दिया, ईच एंड एवरी IPO का रिटर्न 30% था। 98 IPO अगर सब लगते ही नहीं है, बट 98 IPO मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 1 डे गेन, एक दिन का एक गेन है। तो इतना बड़ा रिटर्न प्राइमरी मार्केट में है। सबको लिस्ट करवाना है कंपनी। SME में तो SME 1 लाख प्रॉफिट करती है तो भी लोग आ जाते हैं कि लिस्ट करो। अपना एक शेड है अच्छा, बोले सर लिस्ट करो। तो सबको लिस्ट करवाना है कंपनी को। क्यों? क्योंकि सबको ऐसा है कि ये पैसा बनाने का मशीन है। मीन्स के कुछ ओवर वैल्यूएशन दिखा दो और अच्छे रेट पे IPO लेके आओ। मार्केट है ना,
वो क्या है पता है, मार्केट एक ग्राउंड तय करके बैठा है। अगर पेटीएम का आईपीओ आया था 2200 रुपये में, जब लिस्ट हुआ 2200 रुपये में आईपीओ था, पेटीएम 300 तक गया। क्यों? मार्केट को पता ही था कि 2200 का वैल्यूएशन नहीं है, इसका वैल्यू क्या है, वो वैल्यू पे मार्केट ला देता है। मैं हर प्रमोटर जो, क्योंकि वी आर मर्चेंट बैंकर ऑल्सो, तो हर प्रमोटर जब आते हैं हम बोलते हैं कि सर आप कोई भी वैल्यूएशन पे आईपीओ लाओ, आप 50 के पी पे लाओगे मार्केट आपको 30 पे ला के छोड़ेगा, आप 10 पे लाओगे तो भी आपको 30 पे ला के छोड़ेगा। तो वो मार्केट तय करता है, बट हमारे यहाँ प्रमोटर को ऐसा है कि मैं तय करूँ, और बाद में जब लिस्ट होता है तो मैनेज नहीं हो पाता और मीन्स के ब्लंडर हो जाता है। काफ़ी ब्लंडर्स हो रहे हैं एसएमई में, और इस हिसाब से हमारे सेबी चेयरपर्सन ईच एंड एवरी कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि इसके रेगुलेशन टाइट करें। तो अर्निंग पहला चीज़ है, अनबेसिक चीज़ है। सेकंड है इलेक्शंस, यूएस के इलेक्शन आने वाले हैं। ये साल में वर्ल्ड में 40% पॉपुलेशन इलेक्शन में गई, एंड मैक्सिमम इलेक्शन आर नाउ ओवर एक्सेप्ट यूएस। तो यूएस का इलेक्शन एक बाकी है, और यूएस क्या जगत जमादार बोलते हैं उसको गुजराती में, कि उसको हर जगह टांग अड़ाने की उसकी आदत है। वो कहीं भी प्रॉब्लम है वो या तो पार्टी होता है या तो ऑपोजिट पार्टी होता है, बट वो होता है कहीं ना कहीं साइड। क्यों? यूएस की कंपनीज लास्ट 4 ईयर से डिफेंस कंपनियां लगातार लॉस कर रहे हैं। तो अपना जो पुराना माल है वो बेचना किसे, तो या तो इसको बेचो, इसको बेचने के बाद रिलेशन इसके साथ अच्छे करो, उसको बेचो। तो वो क्या करता है, लास्ट 3 क्वार्टर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स देती है उसकी डिफेंस कंपनियां। जब यूक्रेन वॉर चालू था तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में आई, बाद में इजराइल आया तो सुपर प्रॉफिट कर रहे कंपनियां। तो काफ़ी ऐसा लगता है कि ये क्या लिंक है। तो बेसिकली यूएस के इलेक्शन इस हिसाब से देखने। थर्ड इज मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। सितंबर में अगर रेट कट आ जाता है तो वहाँ से मार्केट का कर्व थोड़ा फ्लैटन होगा, रिटर्न का कर्व जो ऐसे चल रहा है वहाँ से फ्लैटन होगा, क्योंकि हम जब सोचते हैं वो अगर आ जाता है। मैंने ऐसा सोचा है कि मुझे कोई एक्ट्रेस के साथ मैरिज करने और मेरे एंगेजमेंट हो गए वो एक्ट्रेस के साथ, तो मेरी एंगेजमेंट से मैरिज तक मुझे उत्साह रहता है। जैसे मैरिज हो गए तो वो ठीक है, वो परमानेंट हो गया अभी तो बेसिकली मार्केट का ऐसा है, कुछ अच्छे न्यूज़ मार्केट वेट करता है तो वो मार्केट तब तक उत्साह में रहता है कि चलो रेट कट आएगा आएगा आएगा। जिस दिन रेट कट आ गया मार्केट बोल देगा अभी डिस्काउंटेड। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। सेकंड है कि यील्ड्स, बॉन्ड यील्ड क्या चल रही है। बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपना जो पीएचडी मैक्रो में यील्ड्स पे किया। वर्ल्ड में अगर आपको जानना है कि मेरे असेट क्लास, कोई भी असेट क्लास ले लो, आपका व्हीकल ले लो, आपके रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, इक्विटी, सब असेट क्लास इंक्लूडिंग क्रिप्टो, उसका मोमेंट कहाँ से आता है। कोई तो मोमेंट प्रोवाइडर होगा कि भाई ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा। जैसे अर्निंग अच्छी है तो वो मार्केट मीन्स के वो स्टॉक चलेगा। आज एनवीडिया ने अर्निंग अच्छी दी तो भी मार्केट वो गिरा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, बट दूसरे दिन वापस बेस पे आ गए। तो वो हम तय करते हैं अर्निंग से। वैसे पूरे ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल असेट क्लास का मोमेंट प्रोवाइड कहाँ से होता है, वो है यूएस की ट्रेजरी मार्केट की बॉन्ड यील्ड। यूएस के बॉन्ड यील्ड में उसके 2 साल, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 20 ईयर्स, ये 4 उसकी बॉन्ड यील्ड्स है। एंड 30 ईयर्स मॉर्गेज मार्केट में। ये बॉन्ड मार्केट की यील्ड्स नीचे वाली अकॉर्डिंग टू टाइम वो बढ़ती है, लाइक 2 साल वाली नीचे, 5, 10, 20 एंड 30, ऐसे उसकी बॉन्ड यील्ड एक ही डायरेक्शन में चलती है। अगर ये डायरेक्शन या तो नैरो हो या तो वाइडन हो, इसका कुछ इंडिकेशन मार्केट में है। कोरोना में 24 फरवरी ये बॉन्ड यील्ड का कर्व स्क्वीज हुआ था। अगर ये बॉन्ड यील्ड का कर्व स्क्वीज होता है, 2 बॉन्ड यील्ड के बिटवीन अगर नैरो होता है ये गैप, इसका इंडिकेशन है आगे रेट कट आएंगे। और रेट कट तब आते हैं जब इकोनॉमी खराब करते हैं, जब आपका इन्फ्लेशन टॉप पे हो और रेट कट का डिसीजन अगर मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, जिस हिसाब से। सेकंड, यूएस का जो टोटल बॉन्ड एंड डॉलर मार्केट है वो उसकी इकोनॉमी से 2 गुना है, मीन्स कि $60 ट्रिलियन का मार्केट है। तो अगर $60 ट्रिलियन मार्केट को इंडिकेशन देता है तो उसको सारे एसेट क्लास को फॉलो करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो सारा पैसा आएगा डॉलर से यूएस में, डॉलर बढ़ेगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, इससे नेगेटिव इंपैक्ट होगा कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, वो नीचे आएंगे। रिस्कियर एसेट क्लास लाइक इक्विटीज भी नीचे आएगा अगर डॉलर स्ट्रांग होता है। तो ये पूरे एसेट को यहाँ पे आ गया। तो आई थिंक ये पूरा को रिलेटेड मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉपर नीचे आता है तो हिंद कॉपर कैसे चलेगा, अगर क्रूड नीचे आता है ओएनजीसी कैसे चलेगा, अगर क्रूड नीचे आता है तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल चलेगा।
तो ऐसे कोरिलेट करके अगर आप डिसीजन लेते हो आपका इन्वेस्टमेंट का, तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। अभी एक मुझे मैं लास्ट में हम बात करेंगे, एक अच्छा है कि एग्जिट कब करना। सबका ये है कि सर ले तो लिया, इंडियन मार्केट में एंट्री कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंक्लूडिंग मी। आपको कोई भी इंडिया के फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो देखना है, सेबी की वेबसाइट में जाओ, नाम लिखो, आपको पूरा पोर्टफोलियो दिख जाएगा। क्योंकि हमें सेबी को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि हमने कौन से स्टॉक लिए, क्यों होल्ड कर रहे हैं और क्यों हमने प्रॉफिट बुक करना है, तो वो डेटा आपको वहां पे दिख जाएगा। तो बाय करना इट्स नॉट यूएसपी इट्स व्हेन यू एक्सिट। तो उसका 2 फॉर्मूला है, वो हम बात करेंगे। सेकंड, चेंज इज पार्ट ऑफ लाइफ। ये सेंसेक्स के टॉप 5 कंस्टिट्यूएंट है। 1992 में टाटा स्टील पहले था, हाईएस्ट वेट सेंसेक्स में टाटा स्टील का था, बाद में इन्फोसिस आया, बाद में रिलायंस, बाद में एचडीएफसी बैंक। मीन्स के इंडिया में टॉप परफॉर्मर चेंज हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? नई जनरेशन अंदर आ रही है। अगर आप निफ्टी 50 में, मेरे 16-17 ईयर्स के एक्सपीरियंस से, इतने फ्रिक्वेंट चेंजेस जो मैंने लास्ट ईयर में देखे, इतने फ्रिक्वेंट चेंजेस निफ्टी में नहीं हुए। क्योंकि हर कोई की एस्पिरेशन है कि हम बड़ा बने, और वो एस्पिरेशन मार्केट फुलफिल भी कर देता है। इंडिया में क्यों पैसा आ रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है, यह है MSCI, मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स। मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट का 2 इंडेक्स है, एक ग्लोबल एक डोमेस्टिक, एक इंडिया का। अभी लास्ट ईयर तक MSCI में इंडिया का वेटेज 6% था, 6%, और ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इसमें पैसिव फ्लो आता है इन्वेस्टर का। आज आपको ताइवान पता नहीं है कि ताइवान की क्या इकोनॉमी है, ब्लाइंडली आप MSCI का ताइवान इंडेक्स ले लो, आपको ताइवान का फील मिल जाएगा। आपको हांगकांग नहीं पता इसका, इंडिया नहीं पता इंडिया का। तो बहुत बड़ा पैसे इन्वेस्टमेंट थ्रू दिस MSCI इंडेक्स इंडिया में आता है। तो ये MSCI का वेट हमारा एक ही साल पहले 6% था, 6%। लास्ट जो रिव्यू हुआ इसमें हम पहुंच गए 20%, 20%। एक ही साल में वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी आज तक MSCI में इतना पैसे आगे नहीं गई इतने शॉर्टर टाइम में। तो आपको देखना है नेक्स्ट कि MSCI का कितना फ्लो आएगा। मैंने ये जो 7% था तब मैंने बोला था कि 40% होगा। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि साउथ कोरिया जो अभी डेवलपिंग इकोनॉमी में हमारे साथ है, वो नेक्स्ट ईयर में डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी में जाएगा, मीन्स वो जाएगा US वाले बास्केट में। तो इंडिया का वेट ऑटोमेटिक वहां पे बढ़ जाएगा। अभी ये 40% जाएगा, ये 20 वाला, एक साल, तो कितना लिक्विडिटी आएगा। सेकंड कि हम 3 बड़े बॉन्ड मार्केट में ऐड होने वाले हैं, MSCI बॉन्ड मार्केट इंडेक्स, JP मॉर्गन एंड ब्लूमबर्ग। ये तीनों का अगले 3 साल में 4.5 लाख करोड़ रुपया डेट मार्केट में पैसा आएगा, 4.5 लाख करोड़। तो बैंक के पास से कौन पैसा लेगा? सब बॉन्ड मार्केट को ही प्रेफर करेंगे, और वो लिबर प्लस में आएगा। तो आई थिंक ये भी एक बड़ा लिक्विडिटी का फ्लो है, जो जिस हिसाब से ये सारे MSCI, CLSA, गोल्डमैन, नोमुरा एंड JP मॉर्गन सब ने हाईएस्ट वेट इंडिया पे किया है। अगर आप वहाँ का उसका पोर्टफोलियो देखें, इंडिया का हाईएस्ट वेट है सबके पोर्टफोलियो में। और वो थोड़े बहुत एग्जिट करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि FI बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसका भी इतना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगा है, तो वो भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहा है। ये 5 सेक्टर है जो आगे बूम बूम वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। पहला एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अब तक थोड़ा बहुत हम उसको अवॉइड कर रहे थे। ये साल का बजट और अगले 2-3 साल के बजट मुझे लग रहा है कि एग्री फोकस रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन में अगर वोट का काउंटिंग देखें तो रूरल में काफ़ी बड़ा मार पड़ा है। तो इस हिसाब से मिनिस्टर चेंज हुए तो वो काफ़ी पॉलिसी में चेंजेस कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंफ्रा पे फोकस करें। डिफेंस, ये सेक्टर अगले 10 साल का सबसे बड़ा गेन देने वाला सेक्टर होगा। अगले 10 साल में अभी भी कोई भी डिफेंस कंपनी इंडिया की ओवर वैल्यूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई बेस ही नहीं है। मीन्स के हम ग्राउंड से क्या जाना है, ऊपर ही। हम ग्रास रूटर्स है, हम पैराशूटर्स नहीं है, तो ग्रास रूटर तो ऊपर ही जाएंगे। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर। 11,11,111 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने 5 साल में बोला है, तो वो आएगा। हेल्थ केयर, आप देखो इंडिया की फार्मा कंपनी एंड हेल्थ केयर कंपनी रोज नए हाई कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर भी है। एंड सबसे बड़ा अगर कोई सेक्टर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको रिटर्न दे सकता है अगले 5-10 साल में, वो है टूरिज्म। टूरिज्म में हमारा कोई भी अभी भी कोई कंपनी आया नहीं, ना तो किसी का फोकस है। टूरिज्म में इतना पैसा आने वाला है इंडिया में। क्यों?
अभी तक इंडियन कंपनीज ओवरसीज कंपनी के साथ इतने छोटे छोटे कंपनियां नहीं थी, हमारे थे वो लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज के अच्छे रिलेशन। अभी वहाँ की कंपनी इंडिया की छोटी कंपनी के साथ भी अच्छे रिलेशन बना रहे हैं। सेकंड कि फॉर एग्जांपल आज मैं अभी देख रहा था कि एस्ट्रल का नाम लिखा था, तो एक एस्ट्रल एंड पीडीलाइट का एक सप्लायर था, तो वो दोनों करेंसी वहाँ से इंपोर्ट करते थे सप्लायर के पास से। तो उन्होंने बोला कि हम करेंसी का भी रिस्क ले रहे हैं, यहाँ ही प्लांट डाल दो, तो सप्लायर ने इंडिया में प्लांट दे दिया, तो वो भी इंडिया आएंगे तो घूमेंगे सही। हम भी बाहर जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी की विजिट में जाते तो आसपास घूम के ही आते, दुबई जाते तो सिर्फ हम ऑफिस से घर नहीं आ जाते, हम घूमते हैं वहाँ पे, तो वो पैसा इंडिया में आएगा। और ये सेक्टर अभी कुछ नहीं है, कोई भी कंपनी अच्छी लिस्टेड नहीं है होटल के सिवा, तो होटल कंपनियां जो लिस्टेड है वो आगे जाके टूरिज्म के आईपीओ आएंगे, जैसे अभी सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, इसके आईपीओ बड़े आ रहे हैं। तो आई थिंक ये सेक्टर काफ़ी अच्छा करना चाहिए। तो ये 5 सेक्टर है। अभी लास्ट है, मैं अभी एक अच्छी बात सुन के आया कि हमें एग्जिट कब करना चाहिए। तो किसी ने बताया कि एग्जिट कब करना चाहिए, हम एक कॉन्क्लेव में थे, एग्जिट कब करना चाहिए, तो बोले कि सबसे अच्छी एग्जिट किसने ली, सबसे पहला अच्छे लेवल पे एग्जिट करने वाला कौन था, तो वो रामायण का उन्होंने जिक्र किया। रामायण में विभीषण ने सबसे अच्छी एग्जिट ली। वो बोले कि जब प्रमोटर का विजन चेंज हुआ, रावण का विजन जब चेंज हुआ, विभीषण ने एग्जिट ले ली। क्यों? क्योंकि वो सुवर्ण नगरी थी, पॉपुलेशन भी कम थी, देश भी छोटा है, और मीन्स के वर्ल्ड में सबसे रिच कंट्री थी, और प्रमोटर वर्ल्ड का सबसे ज्ञानी प्रमोटर, फिर भी उसका विजन चेंज हुआ तो विभीषण ने एग्जिट ली। उन्होंने एग्जिट करके पैसा लगाया कहाँ पे, जो प्रॉब्लम में थी कंपनी। राम के पास आए वो, उसको प्रॉब्लम था कि सीता जी का हरण कर लिया था, वॉर में जाने वाली थी ये इकोनॉमी, और पता था कि हमारे पास सामने की सेना का जितना बल नहीं है, हमारे पास मनोबल अच्छा है, मीन्स प्रमोटर स्ट्रांग है, बट पैसा नहीं है उसके पास, तो पैसे दो उसको। तो विभीषण जी आए, विभीषण ने ही गाइड किया कैसे रावण को मारना है, तो इसने ही कंपनी को ऊपर लाया, जैसे इन्वेस्टर कंपनी को ऊपर लाते हैं, तो विभीषण ने सबसे बड़ी और सबसे अच्छी एग्जिट ली, और वो क्या बन गए, किंग ऑफ लंका। तो वैसे ही अगर किंग ऑफ मार्केट बनना है तो अच्छे टाइम पे एग्जिट लेनी भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर अच्छे टाइम पे एग्जिट नहीं लिया तो लंका जैसा प्रमोटर चेंज हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा एक रूल है, मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ सिक्योरिटी मार्केट में, अगर मैंने 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और वो स्टॉक 100 रुपीज़ से 300 हो गया, तो मैं 100 रुपीज़ निकाल लेता हूँ। ये मेरा सिंपल कैलकुलेशन है। भले मुझे पता है कि 1000 जाएगा, 100 वाला 1000 जाएगा, बट इससे क्या होगा, मैंने मेरा कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया। अभी जो 200 रुपये है ना, वो मैं 1000 तक रुक सकता हूँ। अगर मैंने कुछ भी एग्जिट नहीं लिया तो मेरा पूरा कैपिटल मेरे रोज देखना पड़े कि इतना चल रहा है, क्या होगा। सिमिलर वे मेरा एक मैंने स्टॉक लिया था JSW एनर्जी, मैंने 205 पे लिया तो हो गया 600। मुझे पता भी नहीं था कि इतना जल्दी होगा, पता था कि अच्छा शेयर है, मैंने उसमें से 200 निकाल लिए। अभी मैंने 205 रुपीज़ निकाले, तो अभी जो 400 है ना, वो मैं 1000 तक आराम से, क्योंकि प्रॉफिट को लाता है वो प्रॉफिट अच्छा है। अगर कैपिटल प्रॉफिट को लाता है वो ठीक है, अगर बोरोइंग प्रॉफिट को लाता है वो सबसे गलत है। मीन जो लिवरेज लेके मार्केट में करते हैं वही सबसे ज़्यादा फंसते हैं, और इसी हिसाब से डेरिवेटिव सेगमेंट में इंडिया में 90% लोग लॉस कर रहे हैं, सेबी का डेटा है। इक्विटी मार्केट में इतने ही लोग पैसा बना रहे हैं जो इन्वेस्टर है, तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा है। वैल्यूएशन ये सब मैटर करता है, बट फंड मैनेजमेंट एंगल से आपको प्रोटेक्ट भी रहना ज़रूरी है। कोई मार्केट अच्छा ओवर वैल्यूड है, कोई स्टॉक 200 से 500 600 हो गया तो वो नीचे भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसे तो रॉकेट है नहीं कि ऐसे ही चलेगा। बाद में कल्पना चावला जी जैसा हो कि वहाँ ही रह गए, नीचे आ गए, कुछ आने को है ही नहीं, तो बेसिक वो ग्राउंड हट जाएगा तो हम नीचे नहीं आ जाएगा। और मार्केट में ग्रेविटी का एक रूल है, वो कभी भी नहीं भूलना है कि कुछ भी न्यूज़ हो, कुछ भी प्रमोटर बोले, कुछ भी हो, मार्केट ग्रेविटी पे चलता है। अगर आपने कोई प्रमोटर ने या किसी ने ऐसा करके वो शेयर को अगर ऊपर ले गए या 200 की वैल्यूएशन वाला 400 हो गया, तो अगर उसके नीचे अर्निंग ने सपोर्ट नहीं किया तो बहुत टाइम 400 पर नहीं रह पाएगा, उसको एक बार नीचे तो आना ही पड़ेगा। तो ये एक फेयर वैल्यू कंसेप्ट है मार्केट का, जिसको हम ग्रेविटी रूल बोलते हैं। सर आपका क्वेश्चन था कोई?
मीन्स आप इसमें मैं शेयर, हाँ 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 बाय कर लिया। हाँ उसमें क्या है कि मीन्स के जैसे मैंने बोला ना, विभीषण ने एग्जिट किया लंका से, तो वो कहीं और नहीं गए, वो राम के पास आए, उन्होंने कुछ तो लिया। ऐसा ही कुछ लेना ही पड़े। मीन्स के अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ग्रो होगा तो आपको वो फाइंड करना पड़ेगा कि नेक्स्ट JSW एनर्जी क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं फंड मैनेज करता हूँ तो मीन्स हमारा 99% रिटेंशन रेशियो है, 100 में से 99 क्लाइंट हमारे पास रहते हैं। इंडस्ट्री का एवरेज 60% है, तो वो लोग को 40% तो ढूंढना ही है कि ये चलो 40 गए तो 40 नए कहाँ से आए। तो ऐसे ही मार्केट में आपको इन्वेस्टेड तो रहना ही है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एग्जिटिंग JSW एनर्जी बाय 205, तो आपको नेक्स्ट JSW एनर्जी ढूंढना ही फंड मैनेजर का काम है। अगर वो पैसा कैश में लिया, आपको क्लाइंट मार देते हैं। अगर हमें कितने भी अच्छे शेयर लिया, अच्छा वैल्यूएशन पे निकाला, तो भी क्लाइंट का ऐसा होता है क्यों निकाला, और ऊपर गया तो, नीचे आया तो वो तो उसकी फॉर्चुनेट होती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारी टीम ऑलवेज ट्राई करती है कि आज हमारा पोर्टफोलियो है तो वो हमें सेटल नहीं होना है, हमें एवरी टाइम अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है, तो वो हम ज़्यादातर वो करते हैं। हाँ जैसे अपन क्रॉपिंग करते हैं तो जैसे आप पहले सीड लगाते हैं, फिर एक टाइम के बाद में उसका सीजन आता है कि उसको 6 महीने 12 महीने में अपने को क्रॉपिंग करना है, फिर वापस सीड लगाना है। तो इन्वेस्टमेंट का भी शायद मैं यही रूल मानता हूँ कि आपको सीडिंग करनी है, उसको नर्चर करना है, जब सीजन आएगा तो आपको उसको काटना, फिर सीड लगाना है। तो सीड लगाने के लिए आप उतना का उतना पैसा उसी मोमेंट पे लगाएंगे तो शायद आप उतना रिटर्न नहीं ले पाए। तो आपको कुछ समय के लिए कुछ सेग्रीगेशंस रखने पड़ेंगे, जिसमें इक्विटी भी हो, डेट फंड भी हो, शॉर्ट टर्म फंड्स भी हो, और कुछ आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में शिफ्टिंग भी होता है, क्योंकि आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। तो जब वो उस मोमेंट पे पहुंच जाता है तो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ स्विच और भी करना पड़ेगा। हाँ, वो आपका क्वेश्चन सुना ही नहीं दिया था आप मुझे। डेफिनेटली इसमें क्या है, मेरा एवरेज मीन्स कि मैं मेरे एग्जांपल से बात करता हूँ, मेरा एवरेज यूटिलाइजेशन मेरे फंड का, डिस्पाइट की मार्केट नीचे ऊपर, मेरा एवरेज यूटिलाइजेशन 70 to 80% ही रहा है। बाद में 20% मैंने या तो गोल्ड या तो अदर असेट क्लास या तो डेट इसमें रखा ही है, क्योंकि जब मार्केट, आपने जो बोला कि आपको दूसरी बार जब सीडिंग करनी है तब ग्राउंड तो खाली होना चाहिए, तो ऑलवेज हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा पार्ट तो खाली रखे। फॉर एग्जाम्पल अभी बारिश आई, सौराष्ट्र में सारी मीन्स की खत्म हो गई, तो नया सीडिंग तो करना ही करना है, क्योंकि बारिश आ चुकी है, फ्लड आ चुका है, आपका पूरा फसल खत्म है। इसी साइड अगर आपने फ्रूट आया, अगर आपने कुछ सीड में आपने बोया है, फ्रूट आया, फ्रूट निकालना है आपको, पूरा नहीं निकाल लेना है। लाइक अगर इफ यू आर मीन्स के आपने कॉटन को बोया है तो कॉटन में हर टाइम वो धीरे 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 आते रहते हैं, आपको वहां से कॉटन निकालना है, तो वो कॉटन इज अ प्रॉफिट बुकिंग। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, पूरा उखाड़ नहीं लेना, नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। हाँ, उसका टाइम होता है कि 5-6 महीने का उसका एक साइकिल है, वो साइकिल के बाद तो उसको भी उखाड़ना ही पड़ता है, अदरवाइज नया सीड लगेगा नहीं, नया सीड नहीं लगेगा तो मैं उसको कोई मुझे रियलाइजेशन नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको प्रॉफिट बुक किया, फॉर एग्जाम्पल JSW एनर्जी 205 रुपीज निकाले, तो अभी मुझे देखना है कि मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी इक्विटीज में। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट नहीं लगे JSW, तो मीन्स कि ऐसा नहीं कुछ भी ले लेना है, आपको डेट में रख देना है। डेट सबसे ज्यादा है, ना तो कोई पूछेगा ना तो कोई मेहनत करनी है, तो हम उतना पैसा तब डेट में रखते हैं। जब ऐसा लगता है कि वो सिमिलर सिक्योरिटी अगर नीचे करेक्ट हो गई, अगर कपास बो के अच्छा पैसा मिला और प्राइस भी अच्छा है, तो फिर से कपास बो। अगर लगता है कि कपास नहीं बोना है, हमें चेंज करना है, तो हम चेंज करेंगे। बट वो एट अ टाइम ऑफ सिक्योरिटी, एट अ टाइम ऑफ मार्केट, हर टाइम डिसीजन आपको अलग लेना पड़ता है। सिक्योरिटी से सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से डेट, सिक्योरिटी से गोल्ड, सिक्योरिटी से कुछ और। उसका तो वो अपने को विशेष तौर से फोकस करने की जरूरत होती है कि पोर्टफोलियो अपन जो मैनेज कर रहे हैं
वो हर मोमेंट के ऊपर अपनी ड्राइव पे चले, न कि मार्केट ड्राइव पे चले। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक जब आप पोर्टफोलियो में आपने बोला कि जब टॉप पे होता है तो भी पोर्टफोलियो अच्छा होता है, बॉटम पे मार्केट होता है। मार्केट एंड पोर्टफोलियो, मैं तो मीन्स के आज से कितने साल से बोल रहा हूँ, मार्केट एंड योर पोर्टफोलियो इज नो लिंक। जैसे मैंने बोला था आगे कि परफॉर्मर चेंज हो रहे, और लाइक कि निफ्टी ये इंडिया का 50 स्टॉक का बना इंडेक्स है, एंड आपके पोर्टफोलियो में उसमें से एक भी स्टॉक नहीं है, तो कहाँ से आप निफ्टी एंड इसको देखोगे? तो मार्केट गिरेगा तो भी आपका पोर्टफोलियो ऊपर दिखेगा। अगर फॉर एग्जांपल सेंसेक्स तो 30 ही स्टॉक है, 30 स्टॉक, अगर आप में 30 स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे 3 पोर्टफोलियो विजिलेंट, वाइब्रेंट, वैल्यूएंट, तो वैल्यूएंट जो है मेरा मिड एंड स्मॉल है, वाइब्रेंट इट्स अ मल्टी कैप एंड विजिलेंट इज अ लार्ज कैप। अभी लार्ज कैप का रिटर्न क्योंकि आपने लार्ज कैप में लिया है तो मैं उसको निफ्टी के साथ कंपेयर करूं क्योंकि उसमें काफी स्टॉक्स है, बट अगर मैं वैल्यूएंट जो मेरा मिड एंड स्मॉल कैप है उसका बेंचमार्क में वो रख ही नहीं सकता। इंडिया में इस हिसाब से काफी लोग है ना रिटर्न को देख के म्यूचुअल फंड में एंट्री कर लेते हैं। वो क्या है, वो एंट्री इस हिसाब से करते हैं, लोग बोलते हैं कि निफ्टी इतना चला है, ये 40% चल गया, निफ्टी 20% ही चला है, तो ये सबसे बड़ा इश्यू है। मार्केट एंड आपका पोर्टफोलियो सब अलग है, आपको हर मीन्स के आप हर स्टॉक को अलग देखना है, हर पोर्टफोलियो के स्टॉक को अलग देखना है, और आपको जब टॉप पे हो और एग्जिट करना है तो जो अच्छे चले हैं, अच्छे प्रॉफिट में है, उसमें से प्रॉफिट बुक करना है। जब बॉटम में एंट्री लेते हो आप, या आपने यहाँ पे निकाला और बॉटम में एंट्री लिया, तो आपको इंडिया में ये ध्यान रखना है कि आपको आउट परफॉर्मर में ही एंट्री लेना है। अंडर परफॉर्मर में एंट्री ली तो वो गया। सेकंड, आपको आपके स्टॉक को जज कैसे करना है कि मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक सही है कि गलत। वो आप ऐसे करो, आपका पोर्टफोलियो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अगर फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक 10% चला और मार्केट भी 10% चला, मार्केट 5% गिरा, आपका पोर्टफोलियो 5% गिरा, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपका स्टॉक थोड़ा अच्छा है। अगर मार्केट 10% चलता है, आपका पोर्टफोलियो 5% चलता है, मार्केट गिरता है तो वो भी गिरता है, उसी टाइम वो स्टॉक को आराम से बोल दो कि नहीं चाहिए मुझे आपका रिटर्न। लोग बोलते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक कभी नहीं चलते, वो मेरा आज तक का 16 साल का एक्सपीरियंस है। इंडिया में आउट परफॉर्मर का ही टाइम है, यहाँ पे लग्जरी का ही टाइम है, यहाँ पे अभी इकोनॉमी का टाइम नहीं है, तो हम लग्जरी देखें, क्योंकि MSCI ये सब का पैसा इसमें ही आएगा अंदर, लाइक एस्ट्रल, पीडीलाइट, ये सब आज से 2 साल के जर्नी देखो, जो स्टॉक MSCI इंडेक्स में एंटर हुए, डिस्पाइट ऑफ ओवर वैल्यूएशन वो 2 to 3 टाइम्स रिटर्न दे गए। तो बेसिकली अच्छे आउट परफॉर्मर को पकड़ो जहां पे रिस्क कम हो। अभी आपने बोला, हेलो, यस, अभी आपने बोला था कि वो पेटीएम का इश्यू आया था 2200 में, बराबर 800,000 पड़ा रहा था, फिर आरबीआई ने वो कुछ उसका वो जो केवाईसी का प्रॉब्लम निकाला, तो उसके हिसाब से नीचे आया। आपने ऐसा बोला कि जो वो उसका इश्यू मतलब जो प्राइस होना चाहिए वो आ ही जाता है, लेकिन ये तो ड्यू टू, इसमें क्या कोरिलेशन है? हाँ, कोरिलेशन है सर। वो कोरिलेशन क्या है कि ये रिस्क परसीव था, लाइक पेटीएम है ना, मीन्स मैंने जो बोला ना, पेटीएम पॉलिसी बाजार दोनों लेते, दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है, एक ये, दोनों थे ऑनलाइन, बट एक आ गया यहाँ से यहाँ, एक आ गया यहाँ से यहाँ। उसका बेसिक क्या है कि सस्टेनेबिलिटी, ये पॉलिसी जो पैरालिसिस है वही, वो 2200 में देगा, वही प्रमोटर ने 500 में 300 में बाई किया, परचेस किया स्टॉक, इस हिसाब से वो 800 भी आया, 600 भी आया, नहीं तो वो और नीचे होता। उसका रीजन क्या है कि आज प्रमोटर है ना, ये बहुत बड़ा आईपीओ था, अगर छोटा आईपीओ होता ना तो शायद लिक्विडिटी के हिसाब से वो वहां पे प्रोटेक्ट हो जाता, बट कोई भी आईपीओ, लाइक कि हम भी एज ए मर्चेंट बैंकर एक आईपीओ लाए, हमने 12 के पीई पे वो आईपीओ लाए, 12 के पीई पे, और फॉर एग्जांपल 149 पे हमने इश्यू प्राइस रखा। आज वो स्टॉक विद इन 15 डेज 700 रुपीज है, 15 to 20 डेज में ट्रेडिंग सेशन में। वो प्रमोटर का वही माइंडसेट था कि मुझे पता ही है कि हमें, मुझे जो वैल्यू है वो मार्केट देगा। पेटीएम में सेम हुआ, पेटीएम गिरा क्यों? क्योंकि 2200 में इन्वेस्ट करके मुझे क्या मिलेगा, मैं तो उस टाइम वो सोचूंगा, मुझे पता है कि एक सेगमेंट, एक बिजनेस में कंपनी चल रही है, और ये मैंने जो वाइबिलिटी ऑफ बिजनेस वाइबिलिटी में बोला ना कि कोविड के टाइम, इस टाइम हमारा सिस्टम बहुत बड़ा बूस्ट होगा, और जो बूस्ट हो जाता है ना उसके इनिशियल स्टेज पे आना चाहिए आपको। ये क्या हुआ कि सब आ गया, सबको पता है, सबके पास पेटीएम है, अभी भी इतने लोग पेटीएम यूज कर रहे हैं, फिर भी कंपनी क्यों लॉस मेकिंग है? उसका रीजन क्या है?
उसका रीज़न यही है कि कंपनी का वैल्यूएशन एंड जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस वो कम है। मैंने एक एग्जांपल ही दिया था वो पेटीएम का कि वो कितने सारे ऐसे स्टॉक है जो अच्छे लिस्ट होते हैं बाद में नीचे आ जाता है, कितने सारे ऐसे हो जो डिस्काउंट में ओपन होके ऊपर जाते, तो वो मार्केट उसको क्या वैल्यू एंड क्या जस्टिफिकेशन देता है वो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। और ये आउट परफॉर्मर अंडर परफॉर्मर वाला जो आपने कॉन्सेप्ट दिया, तो अच्छी अच्छी कंपनियों का शेयर जैसे वेदांता है तो 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ के आसपास आ गया था वो कोविड में, हाँ। कोई भी शेयर लो, टाटा मोटर लो, कोई भी, तो ये इतनी सारी अच्छी कंपनियां वो समझो वो टाइम किसी ने निकाल दिया और अभी टाटा मोटर 1000 रुपया हो गया, VDL 400-500 हो गया, कोई भी शेयर लो वो टाइम क्या जजमेंट करें हम? हाँ। कौन सा शेयर अच्छा है, क्या लेना है, कैसे जजमेंट करें? क्योंकि ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि किस तरह से सिलेक्ट करें वो। देखो वही रिसर्च है। अगर पता ही है सबको कि फॉर एग्जांपल वेदांता के प्रमोटर खुद टेलीविजन पे आए थे 87 पे जब बायबैक आया उन्होंने दिया कि मैं 87 रुपीज़ अच्छी वैल्यू दे रहा हूँ, वो बोले थे टीवी में, तो LIC नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट 330 था, या उसको पता था कि इसका वैल्यू ये नहीं है जो 87 पे। वही रिसर्च है सर। क्यों? उस टाइम सब बेस मेटल के प्राइसेस नीचे थे, सब ने ऐसा सोचा कि अभी कोई इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं, बट सामने सप्लाई चेन तो किसी ने सोची नहीं कि अगर सप्लाई चेन एक्टिव नहीं होगी तो मेटल्स के प्राइसेस शूटअप हो जाएंगे, 2 टाइम्स प्राइस बढ़े, ब्रेक इवन के काफ़ी ऊपर रहे प्राइसेस। और प्रमोटर अगर ऐसा कुछ इंडिकेशन दे कि मेरा स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो वो खुद ना निकले, आपको क्यों बायबैक करे? तो हमें काफ़ी टाइम ये न्यूसेंस के अगेंस्ट सोच नहीं, हाँ, अंडर वैल्यूड अर्निंग से मैं हमेशा अंडर वैल्यूएशन है ना अर्निंग एंड वायबिलिटी से देखता हूँ, प्राइस से नहीं। आज MRF लाख के ऊपर है तो भी चल रहा है, कहाँ गिर रहा है? ओवर वैल्यूड है, सालों से सुन रहे हैं, 5 रुपया डिविडेंड दे रहा है, लाख के ऊपर वाला शेयर 5 रुपीज़ डिविडेंड दे रहा है। वेदांता इतना खराब है फिर भी वो, अगर आपने वो 80 में लिया होता आज 200 रुपये तो डिविडेंड आ जाता। हाँ वही अच्छा वो है ना सर, आप पहले ऊपर से आओ नीचे, पहले देखो मैक्रो, मेसो, माइक्रो। अगर इसमें फिट नहीं होता एग्जिट, इसमें फिट होता है प्रमोटर, क्या भगवान आके बोले कि ये निकाल दे तो भी नहीं निकालना है, तो वो Sir, we can discuss other doubts of the records as we are running out of time. Sir, can you suggest any course on fund management? हाँ कोर्स ना, कोर्स ऐसे अवेलेबल है नहीं, बट हमारे जैसे काफ़ी ज्ञान बांटने वाले लोग यूट्यूब पे है जो फंड मैनेजमेंट कैसे करना वो बताते, तो अच्छा नाम सिलेक्ट करके। और अगर थियोरेटिकल सीखना है तो इंडियन फंड मैनेजर का मत सुनो, तो बाहर जाओ, लाइक कि ग्लोबली USA सब उसका देखो, बाद में प्रैक्टिकल के लिए यहाँ आओ, क्योंकि थियोरेटिकल कंसेप्ट वहाँ से क्लियर होगा, क्योंकि वो ऐसे थियोरेटिकल मैनेज करते हैं। इंडियन मार्केट में फंड मैनेजमेंट का कुछ एंगल थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, तो और बहुत को नहीं सुनना है, 2 को ही सुनना है, नहीं तो इतने सारे व्यूज आ जाएंगे आपके माइंड में कि आप फंड मैनेजमेंट ही भूल जाओ। तो बेसिक है NISM में एग्जामिनेशन से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 एंड लेवल 2 आपके लिए, अगर ये फील्ड में आगे देखना है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपके मार्केट की समझ, रेगुलेशंस, फंडामेंटल सारा क्लियर हो जाए। Thank you, sir. I would like to thank Ravi Deora ji for sharing insightful knowledge. And from this closure note, I will also like to thank all the participants for coming here for today's National Conclave 2024. Thank you.